Today we are going to start with the next paper, which is your linear algebra. Very interesting topic. So again, सबसे पहले prerequisites discuss करने लगे हैं. First is binary composition. Then we are going for three algebraic structures, which are groups, rings, and fields. Okay, talking about binary composition. Any mapping, binary से हमें नाम दिया था, binary means two. So any mapping या any composition from A cross A to A is called binary, या फिर the another name is internal composition. So that means basically हम कर क्या रहे हैं, A cross A, इसका मतलब क्या हो गया, set of ordered pairs. We are associating every ordered pair xy to a number which is fxy. ऐसी composition को हम बोलेंगे binary composition. एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास लेट आर विद अ सेट ऑफ रियल्स, देन द कॉम्पोजिशन वी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. सो यू कैन सी यहाँ पर एक्स प्लस वाई भी किस में जा रहा है, दिस इज अगेन बिलोंगिंग टू आर, सो इट इज अ बाइनरी कॉम्पोजिशन. Okay, one example of not a binary composition. Let n with a set of natural numbers. ये ले लिया हमने set of natural numbers. Composition we are defining as it is equal to say x minus y. अब यहाँ पर say I take natural number x y, let belong to n. So x is equal to 1 and y is equal to 2. अब x minus y कितना हो गया, 1 minus 2, which is equal to minus 1, which does not belongs to n. हमारी कंडीशन क्या थी कि जो fxy again that should belong to a itself, set itself. So जो कि यहाँ पे नहीं करा, so this means it is not a binary कॉम्पोजिशन. ठीक है जी. अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सो दिस इज योर नेक्स्ट थिंग, ग्रुप्स. ग्रुप इज बेसिकली अलजेब्रिक स्ट्रक्चर. अब ग्रुप से पहले हम किस चीज की बात कर रहे हैं, वी टॉक अबाउट सेट. सेट्स हमने पढ़ा हुआ है प्लस 2 में. अब सेट क्या होता है, इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ फेमिलियर या अदर ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट. सिमिलर ऑब्जेक्ट्स मतलब वेल डिफाइंड. अगर इसका मतलब कोई भी सेट ऐसा या कोई भी एलिमेंट्स जो एक कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देते हैं, उसको हम किसमें इंक्लूड कर देते हैं, इंक्लूडिंग सेट्स. अब आते हैं ग्रुप्स की. तो ग्रुप क्या है, बेसिकली अ नॉन एम्प्टी सेट, अ नॉन एम्प्टी, दिस इज इम्पोर्टेंट, अ नॉन एम्प्टी सेट G with a composition, with the composition star, generally I will denote it by star, otherwise you can use the notation this. Then circle also इस तरह से भी यूज किया हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट with the composition. This is called a group if it satisfies the following axioms. तो अब एग्जाम्स है कौन से इसमें, फर्स्ट इज योर क्लोजर प्रॉपर्टी. I'm writing by name first. Closure property says if for all A, B belonging to G, A star B must belong to G. मतलब कॉम्पोजिशन या ऑपरेशन लगाने के बाद वो फिर से किसमें जाना चाहिए, इन द सेट इटसेल्फ. देन सेकेंड थिंग इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. That means for all A, B, C belonging to G, you have read about associative A plus B plus C, that must be equal to, जनरल ऑपरेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पे स्टार यूज करेंगे, A star B star C. Then third is existence of identity element. That means for all A belonging to G, there must exist E belonging to G
such that A star E is equal to A is equal to E star A। इसका मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके साथ ऑपरेट करने के बाद हमें एलिमेंट वापस मिल जाए, रिटर्न मिल जाए एलिमेंट। देन फोर्थ इज एक्सिस्टेंस ऑफ inverse, that is this is the third one, associative closure. For all A belonging to G, there again there must exist B belonging to G such that A star B it is equal to E is equal to B star A. So this is the fifth property. Okay, अब repeat कर रही हूँ। फर्स्ट इज क्लोजर, मतलब ऑपरेशन या बाइंडिंग कॉम्पोजिशन लगाने के बाद एलिमेंट फिर से जाए जी में। देन एसोसिएटिव इज सिंपल, यू हैव ऑलरेडी डन। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, कोई एक ऐसे एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके साथ कॉम्पोजिशन लगाने के बाद एलिमेंट इज रिटर्न बैक। देन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए। देन इसमें एक और चीज आ जाती है एबिलियन और कम्यूटेटिव ग्रुप। तो ऐसा ग्रुप जिसमें A star B is equal to B star A, that is called abelian group. Then further छोटी छोटी सी definitions, finite group, that means definitely which contains finite number of elements. Then you have infinite, which contains this infinite number of elements. So definition को clear करेंगे with the help of example. So first example, we have Z, which is the set of integers Z under the binding composition addition is a ग्रुप। सो मैंने यहाँ पे सब कुछ स्पेसिफाई करना है, कौन सा सेट हमने प्रूव करना है, Z और अंडर द कॉम्पोजिशन प्लस, राइट। सो अब इसके ग्रुप का जो होता है हमें चार प्रॉपर्टीज प्रूव करनी पड़ेगी। फर्स्ट इज क्लोजर। सो फॉर ऑल ए बी, राइटिंग का देखिए यहाँ पे रिटन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस तरह से हमें लिखना है और माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। क्या कर रहे हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जेड, हमें पता है ए प्लस बी ऑलवेज बिलोंग टू जेड, ठीक है। कोई भी नंबर्स को इंटीजर्स को ऐड करेंगे, आंसर विल अगेन बी एन इंटीजर। सो ए प्लस बी बिलोंग्स टू जेड एंड दिस मीन्स द क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, देन सेकेंड इज एसोसिएटिव एडिशन। तो एसोसिएटिव होती है, सो ए बी सी बिलोंगिंग टू जेड, A plus B plus C, this is equal to A plus B plus C। ये भी रिजल्ट। अगर एसोसिएटिविटी की बात करें तो आपके पास एग्जांपल्स हैं जिसमें एसोसिएटिविटी नहीं होल्ड करती। कौन सा है? यस, यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, देन इन दैट केस 1 minus 2 minus 3 is not equal to 1 minus 2 minus 3। सो ये हो गया नॉट होल्डिंग एसोसिएटिविटी, बट एडिशन इज ओके। मल्टीप्लीकेशन में भी ये चीज हमेशा होल्ड करेगी। थर्ड थिंग इज एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जेड देयर एग्जिस्ट ई बिलोंगिंग टू जेड। अब ई यहाँ पे डिफाइन करेंगे, हम सोचना है आपको कि ऐसा कौन सा एलिमेंट ऐड करें सच दैट यहाँ पर फिर से ए ही आ जाए। इट इज इक्वल टू यहाँ पर बी प्लस ए। सो डेफिनेटली एडिशन में जीरो ऐड करेंगे, एलिमेंट वापस आ जाए, इट इज इक्वल टू 0 प्लस ए। सो अब हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंगिंग टू जेड सच दैट, दिस इज इम्पोर्टेंट, सच दैट ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0 प्लस ए। देन फोर्थ इज फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जेड। ओके, अब हमने बात करनी है इनवर्स की, राइट। इनवर्स मतलब हमने जनरल डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि ए स्टार बी मस्ट बी इक्वल टू, यस इट मस्ट बी इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए। अब ई क्या है यहाँ पर, इट इज 0, मतलब कौन सा एलिमेंट इसमें ऐड करें कि आंसर क्या आ जाए, 0। सो डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंगिंग टू जेड। आपको पता है 1 2 3 भी इंटीजर्स है, -1 -2 -3 भी क्या है इंटीजर्स, सच दैट
a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए. सो ये हो गया आपके पास द लास्ट प्रॉपर्टी. इनफैक्ट इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जेड हमारे पास ये भी रिजल्ट होता है a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए. सो दिस मीन्स कम्यूटेटिव b property hold per year, and that means that under the operation addition is an abelian group. Okay, so now next examples. Next एक हमने कर लिया which is a group. अब उससे पहले I will okay next example जैसे मैंने कहा we will talk about not a group. So the set n of natural numbers under the operation addition is not a group. ठीक है जी. अब natural numbers की बात करें they start from 1 2 3 and so on up to right. So first of all again properties अगर शुरू करें let a b belong to g then definitely a plus b belongs to n. So closure property is satisfied. Closure holds. Then you have B. For all A, B belonging to A, B, C belonging to N, you always have A plus B plus C is equal to B plus C. This is the second property. अब थर्ड की अगर हम बात करें यहाँ पर भी लेट की जगह you can use for all, that will be a better word. C. C क्या है आपके पास? Existence of identity. आइडेंटिटी मतलब एक एलिमेंट ए आपने उठाया तो यहाँ पर क्या ऐड करें कि आंसर भी क्या आ जाए ए. इट इज इक्वल टू दिस प्लस ए. सो क्लियरली आंसर तो है हमारे माइंड में कि यहाँ पर अगर हम जीरो ऐड करेंगे तो बात बन रही है. बट प्रॉब्लम क्या है कि जो ये जीरो एलिमेंट है जीरो डज नॉट बिलोंग टू एन. सो इसको इस तरह से हम प्रॉपर लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एन there does not exist E belonging to N such that A plus E is equal to A is equal to E plus A. That is identity element does not exist and hence N under the operation addition इसको इस तरह से आप लिखेंगे is not a group. ठीक है जी. अब सेकेंड इसी तरह से एक और एग्जाम्पल आई टॉक अबाउट द z अंडर द that means integers under the operation subtraction is again not a group. So not a group, again not a group. अब इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें क्लोजर की. So for all a b belonging to z a minus b belongs to z. Again subtraction of integers is definitely an integer only. अब सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें वो है एसोसिएटिविटी. तो a माइनस b माइनस c क्लियरली इट इज नॉट इक्वल टू a माइनस b माइनस c. तो होता ही है. सब्ट्रैक्शन में तो हमारे पास कम्यूटेटिविटी भी नहीं होल्ड करती. जैसे 1 माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 2 माइनस 1. सो ये तो हो गई कि कम्यूटेटिविटी नहीं होल्ड करी बट हमारा पॉइंट था एसोसिएटिविटी पे. बट इन दैट केस ऑल्सो 1 माइनस 2 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 3. सो दैट मीन्स एसोसिएटिविटी does not hold and this implies z under the subtraction is not the. ठीक है जी. तो ये हो गए बेसिक एग्जाम्पल्स. अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रूव दैट C. सो द क्वेश्चन इज प्रूव दैट द सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स forms a group under multiplication. कोई भी सॉल्यूशन देखिए कोई भी क्वेश्चन आए या इनफैक्ट इस पूरे आपके बुक में what will be the basic thing is you must write down
लिखना आना चाहिए। पहले एलिमेंट्स लिस्ट डाउन करेंगे और उसके बाद प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। अब देखिए व्हाट दे हैव सेड, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो जीरो नहीं इंक्लूड करना। नॉर्मली वी डिनोट कॉम्प्लेक्स नंबर्स बाय सी। अब यहाँ पर हम ले लेंगे लेट C1 बी द सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है जी। अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स है सो एलिमेंट्स किस फॉर्म में होंगे, यू कैन टेक इट टू बी a प्लस आयोटा b वेयर a b बिलोंग्स टू r। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमने एलिमेंट लिस्ट डाउन कर लिया है। अब प्रूफ क्या करना है, इट फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी अगेन क्लोजर की बात करेंगे। अगर क्लोजर की बात करेंगे तो पहले तो आप एलिमेंट्स ले लीजिए लेट z1 z2 बिलोंगिंग टू C1। जो एलिमेंट सपोज की इसका मतलब z1 क्या हो गया a प्लस आयोटा b और z2 क्या हो गया आपके पास c प्लस आयोटा d एंड डेफिनेटली दे आर नॉन जीरो। इसका मतलब a b इज नॉट इक्वल टू जीरो